an effort has been made by violation of the Election Code of Conduct to convert a political statement into a religious or casteist statement in order to get political mileage. This is abhorrible. This is absolutely unacceptable to the Bharatiya Janata Party, which believes in the highest levels of political decency and which also believes in Sabka Saath, Sabka Vikas. According to us, the statement made about the Aam Aadmi Party's DNA, about the Aam Aadmi Party's political philosophy, about the Aam Aadmi Party's thinking, the Vaicharik Drishtikon of the Aam Aadmi Party, which is one of anarchy, which is one of obstructionism, ये जो आम आदमी पार्टी का वैचारिक और राजनीतिक सोच है, जिसके कई उदाहरण हमारे पास उपलब्ध हैं। वो कहते हैं कि गणतंत्र दिवस को भी वो डिसरप्ट कर देंगे, गणतंत्र दिवस में धरना बोल देंगे, बाटला हाउस शहीदों को शहादत का अपमान करना, जो जिस प्रकार से इंस्पेक्टर के ऊपर हमला होने वालों को इन्होंने ग्लोरीफाई किया, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में रेफरेंडम की बात करते हैं, ये सभी जो एंटी नेशनल थिंकिंग है, जो विचारधारा है, सोच है, आम आदमी पार्टी की अराजकता है, उसके ऊपर करी गई राजनीतिक टिप्पणी जो मेटाफोरिकली यूज की गई। मेटाफोर का मतलब आप सभी अच्छी तरह भली भांति जानते हैं, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। इट डज नॉट नेसेसरली से for the particular purpose what we are trying to convey, and it has been twisted and misused by the Aam Aadmi Party. We believe this is absolutely unacceptable, and it is a conspiracy of the Aam Aadmi Party to try and bring religious and casteist tones to an otherwise smooth election process. Thank you. नरेंद्र टंडन जी के आरोप पर क्या कहेंगे? थोड़े किरण बेदी पर बड़ा आरोप लगाया है। नहीं, मुझे लगता है कि इस पर कोई आरोप की बात नहीं। नरेंद्र टंडन एक हमारी चुनाव समिति में कुछ काम कर रहे हैं और ये आरोप मुझे लगता नहीं कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, और उनका जो उन्होंने इस्तीफा दिया है उस इस्तीफे को हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं, और बहुत लोग काम करते हैं, उनके अपने डिफरेंसेस काम करने में होते हैं, इसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बात पीयूष जी ने कहा है, तीनों बातें, अवसरवादिता, सफेद झूठ और अराजकता, ये जो राजनीतिक व्यवहार है, इस राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ को हम पूरी तरह कायम हैं, और उसी राजनीतिक संदर्भों की बात हमने की है, जिसको और अभी हम इलेक्शन कमीशन में पीयूष गोयल जी के साथ इसकी जो वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको वो एक जातिगत दृष्टिकोण पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मीडिया में करने के लिए उनको रोज एक एजेंडा सेट करना होता है, और उसी एजेंडे के तहत आज उन्होंने इस जातिगत विषय को उठाया है, और इसको अभी हम तुरंत इसके बाद इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। Well, I think it is very obvious. An Upadravi is an anarchist. If you go into the meaning of Upadravi, an Upadravi is a organization which is anarchist. And when we have to explain that in a metaphorical way, when you say a sea of trouble, you don't literally talk about the sea. You talk of a sea of trouble. Metaphorically used statement in the political context of a party which is anarchist, obstructionist, has been sought to be twisted with a casteist element. And that mindset and the casteist mindset of that party is already been reflected in his earlier statements, where he has tried to appeal to a particular caste of people in the garb of traders. An appeal was sought to be made to try and identify the leader of that party with a set of traders. That is the mentality of that party, of its leadership. Our party believes in Sabka Saath, Sabka Vikas. India is one, all Indians are one. We do not ever divide Indian society on any caste lines. Well, I think I'll have to tell you the definition of metaphor, which will help you understand things better.
A metaphor is a figure of speech in which a word or phrase that ordinarily designates one thing is used to describe another, thus making an implicit comparison. It is only a comparison, it is not an explicit statement. I would urge you to go into Wikipedia, study what a metaphor is, and I'm sure the concerned person and his party also understand what is a political metaphor, how, in what context this was used, and how an effort is being made to convert a metaphor into caste and religious grounds, which is totally unacceptable to us. एक चीज ये पूछना चाहते हैं, क्या ये बीजेपी एड कैंपेन जानबूझकर इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है? पहले अल्लाह की तस्वीर पर माला पहनाना, फिर ये एक तरीके का शब्द, ये एड कैंपेन सिर्फ उस पार्टी की सच्चाई और असलियत को देश के सामने और जनता के सामने उजागर कर। लेकिन इस पे जब तक आए हैं उसको लेकर बार-बार विवाद होता रहा है, तो आपको तो एक जानबूझ के इस तरह से किया जा रहा है कि ये हमने कोई विवाद नहीं किया, हमने तो सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने रखी है। वो उसको ट्विस्ट करके, अगर उनको इतना भी समझ नहीं है कि पॉलिटिकल मेटाफोर क्या होता है, तो उनकी प्रॉब्लम है। हमारे हिसाब से हम कोई गलत शब्द या कोई भी गलत हमने इल्जाम नहीं लगाया, क्योंकि वो तो स्वयं ही कहते हैं कि मैं अनार्किस्ट हूं। वो स्वयं ही घोषणा करते हैं कि अगर मेरी मांगे नहीं मानी तो मैं गणतंत्र दिवस को डिसरप्ट करूंगा, ऑब्स्ट्रक्ट करूंगा। मैं समझता हूं वो सोच जनता के सामने है और जनता भली भांति जानती है कि एनार्किस्ट की सोच उनके पार्टी में और उनके लीडरशिप में बहुत ज्यादा घुसी है। नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, जबकि विकास का एजेंडा लगता है कि उसके अलावा एक नेगेटिविटी जो है। हमारा विकास का एजेंडा तो एकदम भली भांति देश के सामने है। हमने विकास के ऊपर हमारे पूरे विषय जनता के साथ रखे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो भी जनता के सामने आनी चाहिए, जो उनकी सोच है वो भी जनता के सामने आनी चाहिए, और जिस प्रकार के झूठ और फरेब वो बार बार कहते हैं उसके बारे में भी जनता को अवगत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी हम 10 मिनट में इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में उनकी कंप्लेंट हमको करनी है। देखिए, उनके लास्ट में मैं एक ही कमेंट करना चाहता हूं। आप जहां तक उनके लास्ट में मैं एक ही कमेंट करना चाहता हूं, मैं आप सुन तो लीजिए ना, बच्चों को भारतीय जनता पार्टी लेकर के नहीं आई है। बच्चों की कसम तो उन्होंने खुद ही खाई थी, और जो अवसरवादी उन्होंने किया, जो अराजकता उन्होंने की, जो झूठ उन्होंने बोला, बच्चों को वो खुद लेकर के आए हैं और इसका जवाब उनको देना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।